juvenile in the Delhi gang rape case will not be released is what is coming out. His actual date of release from the juvenile home was around 22nd of December, but that's not going to happen just yet. Let's go across to Tonima for more. Tonima, give us the latest. Right, Gargi, as you were mentioning, that technically speaking, his release date was around the 22nd of this month. And also what was being said is that he's eligible, of course, to walk out of that special home. But there have been a few concerns, also given the fact that the Union Minister, Ms. Maneka Gandhi, had also mentioned recently that there should be some mechanism to track juveniles who have been involved in violent cases of sexual crimes against women. So in keeping all that in mind, a model has in fact been worked out by the Child Welfare Committee in this regard, where they are saying that they would want to attach the juvenile for 1 year along with an NGO. That is one of the ways in which A, he can be tracked, and B, also they would be trying to rehabilitate and integrate him back into the society. So practically speaking, in every sense of the word, he won't be released in that sense, because he will be in a way in the protective custody of an NGO, where he will be vocationally trained in order to pick up some sort of a skill in which he can actually be integrated back into the society. And also there have been some concerns, of course, about the fact that his security might be some sort of a threat as soon as he comes out of that special home. We had seen over the past few days, Gargi, that there had been a lot of debate about the fact that the juvenile is going to be released now, just around the 3rd anniversary of the Delhi gang rape. Even parents of the Delhi gang rape victim had in fact knocked on the doors of the National Human Rights Commission, saying that he shouldn't be released. If at all he's released, his identity should in fact be made public. Sorry to interrupt you there, but let's just get a reaction now from Asha Devi, Nirbhaya's mother. She joins us on the phone line. Ma'am, आपको ये खबर आ गई है, जो जुवेनाइल है वो रिलीज किया जाएगा दिसंबर में, लेकिन फ्री नहीं होगा, वो एनजीओ के पास रहेगा 1 साल के लिए. आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एनजीओ में है या जेल में है, क्योंकि मेरे लिए तो वो आज़ादी है. तो मेरे बेटी को तो इंसाफ ऐसे ही नहीं मिला. हमें हमेशा ये मन में रहेगा कि नहीं, हमारी बेटी का कातिल बाहर घूम रहा है. लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पब्लिक की भी सुरक्षा और प्लस हमारी भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है. तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए. और मैं क्या कहूँ, मेरे को इससे दुख की बात क्या होगी कि मैं 3 साल संघर्ष करी और हमारी बेटी की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है और उस पे उसके कातिल को छोड़ा जा रहा है. तो ये हमारे साथ मजाक है और क्या है. हेलो जी मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि आप लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आप लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, आपने मांगा कि उनको रिलीज़ ना किया जाए, और अगर रिलीज़ भी किया जाए जुवेनाइल को, उसकी आइडेंटिटी पब्लिक की जाए. आप जैसे अभी भी कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा और जो जनता की भी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, तो ये एक मोडालिटी उन्होंने वर्कआउट किया है कि उसको रिलीज़ टेक्निकली नहीं किया जा रहा है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, एक एनजीओ के साथ ही वो रहेगा. तो इस हिसाब से आपको लगता है कि कुछ हद तक सरकार ने आपकी बात मान ली है? नहीं, मुझे नहीं लगता है. मैं उसको बाहर जेल से छूटने के फेवर में नहीं हूँ. लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि सरकार हम के हाथ में सब कुछ है. जैसे वो कर रहे हैं वो जाने, क्योंकि उनके ऊपर समाज की सुरक्षा उनके ऊपर है, प्लस हमारी भी सुरक्षा उनके ऊपर होनी चाहिए. तो क्या कर रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा वो कुछ संतोष नहीं है. मुझे तो यही रहेगा कि नहीं, हमारी बेटी की कातिल बाहर है और उसके बरसी पे ही वो बाहर आ रहा है. तो मेरे लिए दुख की बात और क्या होगी. आशा जी, हम फिर से ये बताना चाह रहे हैं कि शायद टेक्निकली उसको बाहर नहीं लिया जा रहा है, उनको शायद एक एनजीओ के साथ रखा जाएगा ताकि वो बाहर ना निकले. बट ये भी हम पूछना चाहते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर है मेनका गांधी, उन्होंने भी कहा है कि जो जुवेनाइल्स हैं, जो ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक केस जो है इनके खिलाफ और सेक्सुअल वायलेंस का केस है, उनको ट्रैक किया जाना चाहिए, सरकार की उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए. तो ये भी शायद एक तरीका है उनके पास उसके ऊपर निगरानी रखने का. इस बारे में आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, वो सरकार है,
अब उनके ऊपर पूरे जनता की जिम्मेवारी है, तो कुछ सोच ही के कर रहे होंगे। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि मुजरिम ने कानून उल्लंघन के हमारी बेटी के साथ घिनौना हरकत किया, लेकिन हमारे इंसाफ के लिए हमारे लिए कानून कुछ भी नहीं किया। तो मुझे दुख रहेगा हमेशा कि वो बाहर आ जाएगा। जी आशा देवी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड Tonima as well, thanks for joining us with the latest there. It does seem Asha Devi still not very happy with this news, even though the juvenile will stay for a year with an NGO.